Morning students, today we are going to discuss the poetry section. Or poetry section में we are taking the first poem, My Mother at 66. As we know, the first poem, My Mother at 66, is written by Kamla Das, who was born in 1934 and died in 2009. She was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kutti. इट मीन्स दैट उन्होंने जो अपने वर्क पब्लिश किए हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज या फिर मलयालम लैंग्वेज में वो माधवी कुट्टी के नेम से हर पेन नेम इज़ माधवी कुट्टी. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories Padmavat, The Harlot, and Other Stories 1992, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. सो हमने बात की कि कमला दास अपनी जो वर्क्स हैं, जो पोएम्स हैं, उनमें क्या चीज़ रिवील करती है. कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम. दिस पोएम इज ऑल्सो हर लिरिकल इडियम बेस्ड पोएम. और इस पोएम में she has written this poem in a single sentence punctuated by commas. जो इसकी सबसे अच्छी जो फीचर है इसकी वो सिर्फ सिंगल सेंटेंस में लिखी हुई है. बट हम इसको स्टेंजा में डिवाइड करेंगे एंड इसके बारे में बात करेंगे. बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. एज वी नो कि जो वृद्ध होना है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. वी कैन नॉट स्टॉप इट. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. आपने कोई सोचा है हमारे एल्डरली पेरेंट्स उस एजिंग के दौरान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं. इसके बारे में द होल पोएम टॉक्स अबाउट. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची. इसका जो फर्स्ट स्टेंजा हम करेंगे, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर beside me, open mouth, her face as like that of a corpse. यहाँ तक हम इस फर्स्ट स्टेंजा को पैराफ्रेज करेंगे. और तो इसमें हमें मालूम पड़ेगा कि कमला दास अपने मदर के होम गई हुई है जो कि नियर कोची के नज़दीक है. शी हैड गॉन टू मीट हर मदर नियर कोची एंड in the morning of Friday, she is coming back to the Kochi airport. So the description is that driving from my parents' home, वो अपने parents के घर से आ रही है to Kochi last Friday morning. I saw my mother while sitting in the car and traveling towards the airport. Kamala Das noticed her mother was sitting beside her with her doze open mouth, her face ashen like that of a corpse. Her mother was dozing, means sleeping. Open mouth, her mouth was open while sleeping. Her face ashen like that of a corpse. And her face ashen like that of a corpse. Here it means कि उसकी मम्मी का जो चेहरा था, it was bearing color of ashen. Ashen means here paleness, पीलापन. जिस तरह से एक
डेड बॉडी होती है उसका कलर हो जाता है, फीका पड़ जाता है। इन द सेम वे द कलर ऑफ Kamala Das mother was, and realized with pain. Second stanza we'll talk about here, and realized with pain that she thought away. और फिर उसे रियलाइज हुआ after noticing the mother of her face and the way she was looking, the face was appearing to her. She realized, she thought that, she thought with pain that she thought away. She thought away here means उसकी मम्मी ने इस जीवन के बारे में सोचना बंद कर दिया है. सी हैज स्टॉप थिंकिंग ऑफ दिस लाइफ एंड सी हैज स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द लाइफ आफ्टर द डेथ. मीन्स हर मदर वॉज इंचिंग टुवर्ड्स हर डेथ एंड लुक्ड, और ऐसा दिखाई भी दे रहा था दैट सी वॉज इंचिंग टुवर्ड्स हर डेथ, बट शून पुट दैट थॉट अवे. लेकिन शीघ्र ही उसने क्या किया, ये जो थॉट था दैट हर मदर वॉज गोइंग टू डाई, हर मदर वॉज गोइंग टू डाई, सी पुट दैट थॉट अवे, उसने इसे रिजेक्ट कर दिया. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. लुक्ड आउट, और वो बाहर देखने लगी. शी बिगेन टू लुक आउट ऑफ द कार विंडो. And what did she look at? At young trees on both sides of the road. There were young trees, छोटे छोटे युवा पेड़ थे, which were running in the opposite side. It appeared that they were running opposite to the car, कि वे कार के विपरीत दिशा में भाग रहे थे. Sprinting here means running fast. The merry children spilling, or merry children means here the children who were energetic were coming out of their homes. वो अपने होम से बाहर निकल रहे थे, बड़े ही एनर्जेटिक, दे वर फुल ऑफ लाइफ. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो हम इसमें एक बार फिर से डिस्कस करेंगे. सी पुट दैट थॉट अवे, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. उसने अपने जो थॉट था दैट हर मदर वाज गोइंग टू डाई, इसको रिजेक्ट कर दिया. कैसे कि उसने अपना ध्यान बाहर की तरफ किया, और बाहर शी फाउंड दैट द यंग ट्रीज वर रनिंग in the back side, in the opposite side, and some young children were coming out of their homes. They were full of life. दोनों ही जो चीज़ें थी, both the things were full of life. They were indicating her that their life had just begun, कि उनका लाइफ अभी शुरू ही हुआ था. Whereas her mother was going to die, जबकि उसकी मम्मी का जो लाइफ था वो ख़त्म होने जा रहा था. But after the airport security check. लेकिन now we'll move to the next stanza. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन व्हेन दे रिच्ड द एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट, तो क्या हुआ, दे वर चेक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा उनकी चेकिंग की गई. एंड व्हेन शी वाज चेक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड, सी अगेन स्टूड ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, वह अपनी मम्मी से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर खड़ी हो गई. एंड अगेन लुक्ड एट हर, और फिर से उसकी तरफ देखा. एंड शी फाउंड हर फेस वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, उसे अपनी मम्मी का चेहरा फिर से वैन पेल, फिर से वैन मीन्स हेयर द अगेन पेलनेस, जो कि एक इल जो बॉडी होती है या इल जो फेस होता है वो दिखाई पड़ता है. पेल अगेन द सेम मीनिंग, एज अ लेट विंटर्स मून,
जिस तरह से लेट विंटर मून, जो लेट विंटर सीजन होता है उसमें मून दिखाई पड़ता है, दैट इज नॉट विजिबल क्लियरली बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग। वो मिस्ट और फॉग की वजह से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही हर मदर फेस लुक्ड अनक्लियर, नॉट completely visible to her, and felt that old familiar ache। और जब उसने अपनी मम्मी के चेहरे को देखा इन दैट कंडीशन, सी फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache, my childhood fears। So she was pained to see her mother's face। सी फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache, उसे वही परिचित सा दर्द महसूस हुआ। दैट वॉज द फियर ऑफ हर चाइल्डहुड, जो उसके चाइल्डहुड का फियर था। दैट शी वुड लूज हर मदर, कि वह अपनी मम्मी को लूज कर देगी, खो देगी संसार में। बट इवन आफ्टर फीलिंग एंड रियलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा। सी कंट्रोल्ड हर फीलिंग्स, उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। एंड सी डिड नॉट वॉन्ट टू रिवील हर फीलिंग्स टू हर मदर। दैट इज वाई she took the step and said, all I said was, see you soon, Amma। She bid her mother farewell, saying that they would meet again very soon। All I did was smile and smile and smile। एंड जो लास्ट लाइन है इसकी, ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें कहीं न कहीं जो कमला दास है वो अपनी फीलिंग्स को दबा रही है यहाँ पे। सी डिड नॉट वांट टू रिवील हर फीलिंग्स टू हर मदर, इसलिए सी जस्ट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वो अपनी जो कंडीशन है उसको कन्वे नहीं कर पा रही है। एंड टू कंट्रोल हर सेल्फ हर फीलिंग्स, or to express her feelings, she just did smile and smile and smile, because she found the words could not express her condition। So she just smile and smile and smile। तो यहाँ पे हमारे पास टू वर्ड मीनिंग्स हैं, स्प्रिंटिंग, शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग। इट हैज़ बीन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यंग ट्रीज, वैन, कलरलेस। सो बिफोर वी मूव अहेड, हम इसके एक बार पोइटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज़ की गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है सबसे पहले वो है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। उसका जो चेहरा था, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पे जो है सिमिली यूज़ की गई है, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। ये एग्जाम्पल है सिमिली का। उसके बाद हम चलते हैं, इसमें सिमिली यूज़ की गई है नेक्स्ट, एज ए लेट विंटर्स मून। एज ए लेट विंटर्स मून में सिमिली यूज़ की गई है। यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है हर मदर फेस का, इट लुक्स लाइक लेट विंटर्स मून। अपार्ट फ्रॉम सिमिली, इसमें मेटाफोर यूज किया गया है। मेटाफोर जिसमें कंपैरिजन इज टेकन फॉर ग्रांटेड। मैरी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पे द पोएटेस हैज यूज्ड मेटाफोर। अपार्ट फ्रॉम मेटाफोर, वी कैन सी इमेजरी। इमेजरी के लिए कुछ वर्ड यूज किए गए हैं हमारी पोएटेस के द्वारा। ट्रीज प्रिंटिंग जैसे है एक फ्रेज है, मैरी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स एज ए लेट विंटर्स मून। फिर इसमें नेक्स्ट जो चीज़ यूज की गई है वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन इसमें यूज किया गया है, पुट दैट थॉट अवे।
She thought away and looked, but soon put that thought away. Thought away, thought away, हमें यहाँ पे 2 बार देखने को मिल रहा है. So she has used repetition. Not only this, but uh, she has used this here, smile and smile. All I did was smile and smile and smile. तो यहाँ पे स्माइल वर्ड को रिपीट करके सी हैज़ ब्यूटिफुली यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन. अब इसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच कवर कर ली है और हमने इसका पैराफ्रेज करके देख लिया है. सो नेक्स्ट थिंग यू हैव टू, आई विल गिव यू इट्स टेक्सचुअल क्वेश्चन. उसके लिए थोड़ा वेट. यस स्टूडेंट्स, इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका बनता है बिफोर यू रीड, जो हमारे पास पहले आया था, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. तो इसका आंसर, एक मॉडल आंसर देने की कोशिश की गई है. एज पीपल यूजुअली अंडरगो पैंग्स ऑफ लोनलीनेस. एज पीपल जो होते हैं वो अकेलेपन के जो दर्द होते हैं उनसे गुजरते हैं. अकेलेपन, ऐसे मोमेंट आते हैं कि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं. दे नीड कंपेनियनशिप, उन्हें साथ की ज़रूरत होती है. द पेसिमिस्टिक अप्रोच दे डेवलप टुवर्ड्स लाइफ कैन बी शन्ड ओनली इफ़ वी गिव देम कंपनी एंड इम्पोर्टेंस. उनका जो निराशावादी दृष्टिकोण हो जाता है वो लाइफ के प्रति जो डेवलप कर लेते हैं, इसको हटाया जा सकता है यदि हम उनको साथ दें और उनको इम्पोर्टेंस दें अपने एज्ड पेरेंट्स को. दे एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू सिट कामली एंड टॉक टू देम अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ देयर लिव्स एंड टू टेक देयर सजेशंस फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजंस. वे अपेक्षा करते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनके पास बैठें शांति के साथ और उनसे बात करें जो जीवन में हो रहा है उसके बारे में, एंड टू टेक देयर सजेशंस, और उनकी सलाह लें फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजंस. जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लेने होते हैं लाइफ में, उनमें उनकी सलाह लें. देयर लॉस्ट विटेलिटी कैन दस बी इजीली रिजुविनेटेड. इस तरह से जो उनकी विटेलिटी कहीं खो गई है लाइफ के प्रति, उसको दोबारा से जीवित किया जा सकता है, दोबारा से रिजुविनेट किया जा सकता है. दिस हैप्पीनेस विल एनकरेज दैम टू लिव लाइफ एंथुसिस्टिकली. और इससे जो खुशी होगी वो उनको एनकरेज करेगी, प्रोत्साहित करेगी कि वो अपने जीवन को बड़े उत्साहपूर्वक जी पाएंगे. अब इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स. किस तरह का दर्द जो पोएट है वो फील करती है. द इमोशनल पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स इज ड्यू टू द रियलाइजेशन दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड, शी हैज़ बिकम फ्रेल एंड पेल लाइक ए कॉप्स. जो इमोशनल पेन वो फील करती है वो है क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है और वो कमज़ोर हो चुकी है और वो अब एक डेड बॉडी की तरह दिखाई देने लग गई है. सी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों पर निर्भर हो गई है. द एक ऑल्सो रेफर्स टू द चाइल्डहुड फियर व्हेन द पोएट फेल्ट इनसिक्योर विदाउट हर मदर. और ये दर्द कहीं ना कहीं वो दर्द भी है जो बचपन में उसे उसका डर था, वो दर्द भी है कि बचपन में वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती थी अपनी मदर के बगैर. दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी परवेट्स एंड रिविजिट्स द पोएट ड्यू टू द मदर्स ओल्ड एज एंड हर अप्रोचिंग एंड. ये इनसिक्योरिटी वाली जो उसकी फीलिंग थी ये दोबारा से आ जाती है जब पोएट अपनी मदर को ओल्ड एज में पाती है और उसकी जो एंड है वो आ रहा होता है. सी इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स हर एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग. यंग ट्री जो है उनको दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है. यंग ट्रीज को दौड़ते हुए डिस्क्राइब करने के पीछे जो पोइटेस है हमारा, वो कहीं उसने उनको पर्सनिफाई किया है, उनको कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग बना दिया है. दे सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन सीन थ्रू द विंडो ऑफ द मूविंग कार. यस,
कार की विंडो से जब देखा जाता है तो वो पीछे दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। द मोमेंट इज जक्सटापोज्ड विद द एक्सप्रेशन ऑन द मदर्स फेस। ये जो मोमेंट है ये बिल्कुल विपरीत है जो मोमेंट हमें मदर के चेहरे में देखने को मिलती है, दैट शी इज इंचिंग टुवर्ड्स हर डेथ, वेयर एज शी इज इंचिंग टुवर्ड्स हर डेथ, शी इज रनिंग टुवर्ड्स हर डेथ, वेयर एज the young trees, by running fast in the opposite direction, they are referring to their beginning of life. So the movement of the children and the trees is in stark contrast with the stillness and associated with the mother. The vibrancy of youth and the inertia of old age can be correlated here in this expression. किस जो एक लेथर्जी सी छा जाती है ओल्ड एज में और यूथ में एक वाइब्रेंसी होती है, वो देखने को यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है अब, वाई हैज़ द पोएट ब्रोट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो खुश बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्पीलिंग मीन्स कमिंग आउट, और स्पीलिंग का एक मतलब होता है बिखरना। सो कैसे ये घरों से बाहर आ रहे हैं? वाई हैज़ द पोएट यूज दिस इमेज, क्यों ये इमेज प्रयोग किया है? द पोएट हाईलाइट्स द हेल्पलेसनेस एंड फेलिटी ऑफ ओल्ड एज विद द हेल्प ऑफ कंट्रास्ट्स। ये जो कंट्रास्टिंग चीज़ें बयां करके पोएटेस है वो हाईलाइट करना चाहती है असहायपन और कमजोरी जो ओल्ड एज की होती हैं उससे एसोसिएट की जाती है। मदर द मदर डोजेज ऑफ विद हर माउथ ओपन वेयर एज द चिल्ड्रन स्पिल आउट ऑफ देयर होम्स। कि मम्मी ऊँग रही है, सो रही है अपना खुला मुख रख कर, जबकि जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिस सिग्निफाइज मूवमेंट एंड एनर्जी, एंथुजिज्म एंड विविसिटी विच द ओल्ड पीपल आर bereft ऑफ। ये प्रतीक है मूवमेंट एंड एनर्जी, एंथुजिज्म एंड विविसिटी। ये प्रतीक है जो युवा हैं उनकी मूवमेंट का, एनर्जी का, उत्साह का, विविसिटी का, जो ओल्ड पीपल में देखने को नहीं मिलती है। दे लैक ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। अब fourth question we are discussing, and in this fourth question the mother has been compared to the late winter's moon। क्यों कंपेयर की गई है? क्योंकि लेट विंटर मून है वो डल होता है, श्राउडेड होता है। इट सिंबलाइज द एबिंग ऑफ लाइफ। यह प्रतीक होता है जीवन के कमज़ोर होने का, जीवन के ख़त्म होने का। द मून ब्रिंग्स टू द पोएट्स माइंड नाइट और अप्रोचिंग एंड ऑफ लाइफ। दिस मून ब्रिंग्स टू द पोएट्स माइंड नाइट और द अप्रोचिंग एंड ऑफ लाइफ। यह पोएट के माइंड में वो रात वाल का दृश्य है, या फिर जो दूसरे शब्दों में कहें तो अप्रोचिंग एंड ऑफ लाइफ उसको लेकर आता है। द मदर लाइक द लेट विंटर्स मून इज डल, डिम एंड डिस्मल। बिल्कुल लेट विंटर मून की तरह ही डल है, डिम है, डिस्मल है। डल फीकी है, नीरस है, डिम अच्छी तरह से दिखाई नहीं पड़ रही है, डिस्मल उदास है। What do the parting words of the poet and her smile signify? जो पार्टिंग वर्ड उसने बोले हैं कि सी यू सून अम्मा, वो किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं? और उसकी स्माइल है वो किस चीज़ को सिग्निफाई, किसका प्रतीक है वो? द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा आर यूज्ड बाय द पोएट टू रीअश्योर द मदर एंड टू इन्फ्यूज ऑप्टिमिज्म इन द पोएट हरसेल्फ। वो अपनी मम्मी को रीअश्योर करने के लिए और अपना जो उसका आशावाद था उसको इन्फ्यूज़ करने के लिए, अपने आप में भरने के लिए उसने प्रयोग किया है। द पोएट एक्सेप्ट दैट रियलिटी को तो एक्सेप्ट कर लेती है, कीप्स अप द फॉकेट ऑफ स्माइलिंग इन ऑर्डर टू पुट अप ब्रेव फ्रंट। फिर भी अपने चेहरे पर स्माइल इसलिए लेके आती है ताकि वो एक बहादुरी वाला चेहरा दिखा सके, बहादुरी से इस चीज़ का सामना कर सके, इस रियलिटी का सामना कर सके। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द पोएट टू स्टेबलाइज। स्थिर होने के लिए कवि को, कवियत्री जो हमारे, उसको काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। हैंस द पोएट हैज़ यूज द पोएटिक डिवाइस ऑफ रिपीटिशन। इसी वजह से
कमला दास ने इसमें रिपीटिशन जो पोएटिक डिवाइस उसका यूज़ किया है। विद दिस इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपको खुद निकालने हैं, उनको फ्रेम करना है, उनको आंसर करना है, एंड एक बार इसको अच्छे से रीड करना है और इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय।